Hello everyone. I am here to present some questions related to reasoning. So our first question is 64 players seeded from seed 1 to seed 64 participated in a knockout tennis tournament. Seed 1 is the highest seed and seed 64 is the lowest seed. The tournament would be played in 6 rounds, that is first round, second round, third round, quarterfinal, semi-final and final. In the first round, the player with the highest seed, that is 1, would play with the player with the lowest seed, that is 64, which is designated match number 1. Okay, so similarly, the player with the second highest seed, that is 2, would play with the player with the second lowest seed, that is 63, which is designated match number 2, and so on. In the second round, the winner of the match number 1 of the first round would play with the winner of the match number 32 of the first round. And this match is designated match number 1 of the second round. Similarly, the winner of the match number 2 of the first round would play with the winner of the match number 31 of the first round, and this match is designated match number 2 of the second round, and so on. In the similar pattern, the subsequent rounds will be played. Okay, so the question based on this paragraph is, first question is, if the player seeded 43 won the tournament, then which of the following player cannot be the runner-up? The options are player seeded 44, player seeded 45, player seeded 46, player seeded 36. Our second question is, who could be the lowest seeded player facing the player seeded 12 in the finals? The options are 57, 59, 62 and 63. Next question is, if one of the matches was between the players seeded 23 and 46, then one of the matches in the tournament can be between players seeded 9 and 33, 6 and 18, 5 and 51, 17 and 15. The next question is, if there are only 5 upsets, a lower seeded player beating a higher seeded player in the tournament, then who could be the lowest seeded player winning the tournament? The options are 16, 17, 63 and 32. So, अब आप इसमें देखिए, हमें सबसे पहले समझना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल 64 प्लेयर हैं, ठीक है, जिनके पास सीड है सीड नंबर 1 से लेके सीड नंबर 64 तक। ओके, इन्होंने पार्टिसिपेट किया एक टेनिस टूर्नामेंट के अंदर। जो सबसे हाईएस्ट सीड है उसका जो नंबर है वो सीड नंबर 1 है, और जो सबसे लोएस्ट सीड है उसका सीड है 64। मतलब हाईएस्ट आपका क्या है, हाईएस्ट इज 1, ओके, एंड द लोएस्ट इज 64. So second lowest will be 63 and second highest will be second. Okay, and so on. उसके बाद अब क्या होता है कि ये जो मैच है ये 6 राउंड्स में खेला गया है। 6 राउंड हुए इसमें। पहला राउंड हुआ जिसमें एक पार्टिसिपेंट का दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ मैच हुआ। फर्स्ट का 64 के साथ हुआ, सेकंड का 63 के साथ हुआ, सिक्स का आपका फर्स्ट का किसके साथ हो रहा है 64 का के साथ, सेकंड का 63 के साथ, थर्ड का 62 के साथ एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इनमें से 1 और 64 में जब मैच होगा तो कोई एक ही विनर होगा, या तो 1 होगा या 64 होगा। तो अब आपको क्या करना है, 1 या 64 में से जो भी विनर होता है उसको आप बाहर ले लेते हैं। लेट द विनर विल बी 1। 2 एंड 63 में से जो भी विनर होता है उसको बाहर ले लेते हैं, जैसे कि आपने ले लिया 63 को। 3 एंड 62 में से मान लिया आपका 62 विनर है, तो इस तरह से आपके पास टोटल नंबर जो आ जाएंगे उसको आप एक लाइन में अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में एक आ गया, अब जो भी ये विनर्स आते हैं इनमें जो पहले मैच का विनर है और जो आपके नीचे वाले मैच का सबसे लास्ट मैच का विनर है, उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। सेम सेकंड लास्ट विनर जो है और जो सेकंड विनर है उन दोनों के बीच में होता है मैच। ये किसके अंदर हो रहा है, ये सारा सेकंड राउंड के अंदर हो रहा है। थर्ड राउंड के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके सेकंड मैच के विनर हैं उनको आप थर्ड राउंड में ले जाते हैं और फर्स्ट एंड लास्ट का आप कंपटीशन कराते हैं, आप उनको टूर्नामेंट के अंदर आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ विनर आएंगे उनको आप क्वार्टर फाइनल में लेके जाते हैं, फिर उनके जो विनर आएंगे वो सेमीफाइनल में जाते हैं, और लास्ट में आपके 2 विनर बच जाएंगे उनको आप फाइनल में लेके जाते हैं, और उन दोनों के बीच मैच होता है जो हमारा फाइनल विनर आता है। ठीक है, तो अब ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया।
कि हमारा टूर्नामेंट है, उसके अंदर आपके टूर्नामेंट के अंदर आपके 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल। ठीक है, मैच 1 के अंदर हाईएस्ट सीड दैट इज 1 जो है वो लोएस्ट सीड दैट इज 64 के साथ कंपीट कर रहा है। सिमिलरली सेकंड जो है वो 63 के साथ कंपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैच नंबर 2 बन गया आपका, एंड ऐसे ही बढ़ता जाता है। सेकंड राउंड में आपका बोल रहा है कि जो मैच नंबर 1 हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर, उसका विनर मैच नंबर 32, फर्स्ट राउंड का जो मैच नंबर 32 होगा उसके विनर के साथ मैच करेगा, उसके साथ कंपीट करेगा। ठीक है, सेकेंड राउंड के अंदर ऐसे आपका आता जाएगा। अब आप क्वेश्चन पे आइए। तो अब आप देखिए, हम पहले इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमने नंबर लिख लिया। हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं? टोटल सीट्स है 1 से लेके 64 तक, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 1 से लेके 64 तक। ओके, राउंड 1 में क्या होता है हमारे पास? राउंड 1 है हमारे पास। ठीक है, दिस इज राउंड 1, ये आपका राउंड 1 है। ठीक है, इस राउंड में 1 से लेकर 64 तक सीड किए हमने। तो देखो मैंने किस तरह से अरेंज किया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 32। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपके टोटल 64 हैं, हर कोई एक दूसरे से कंपीट कर रहा है, तो टोटल कितने मैच बन सकते हैं आपके? कितने मैच बनेंगे आपके? 64 का हाफ, 64 डिवाइड बाय 2, तो कितने मैच बन गए आपके? 32, टोटल 32 मैच बनेंगे। तो 1 से लेके 32 तक हमने यहाँ लिख लिया, 1 से लेके 32 तक आपका ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब 32 का जो है हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 जो है, 1 किसके साथ कंपीट कर रहा है? 1 कंपीट कर रहा है 64 के साथ। तो 1 किसके साथ कंपीट कर रहा है? यहाँ पर 1 कंपीट कर रहा है 64 के साथ। 2 किसके साथ करेगा? 63 के साथ। 3 किसके साथ करेगा? 62 के साथ। अब इसकी ट्रिक क्या है, आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखो आप यहां देखें तो 1 प्लस 64 कितना बनता है हमारा? 65 बनता है, टोटल 65 बनता है। अब हमें इसका जो ऑर्डर है, अगर हमें कोई पूछता है कि 16 के साथ कौन कंपीट कर रहा है, तो देयर इज नो नीड टू मेक होल सिस्टम एंड देन यू विल फाइंड कि 16 के साथ 49 करेगा। हमें सिर्फ फर्स्ट का देखना है कि 1 के साथ 64 कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 65। तो 16 के साथ जो करेगा उन दोनों का सम भी कितना आएगा आपका? उन दोनों का सम भी आपका 65 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहां से x इक्वल टू कितना हो गया? 65 माइनस 16, तो ये कितना आ गया आपका? 49। तो इसका मतलब 16 के साथ कौन कंपीट कर रहा है? 49। ऐसे आपका यहाँ चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी का भी अगर सम देखते हैं तो 1 और 64 का सम भी 65, 63 एंड 2 का सम भी 65, 62 एंड 3 का सम भी 65, सेम 32 एंड 33 का सम भी 65। तो टोटल 32 मैचेस आपके राउंड 1 में कंपीट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये तो आपका राउंड 1 के अंदर हो गया। अब क्या होगा कि 1 और 64 में से कोई विनर आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 एंड 63 में से भी कोई विनर आएगा, 3 एंड 62 में से भी विनर आएगा, 4 एंड 61 में से, वैसे आपका 32 से 33 में भी कोई विनर आएगा। तो अब क्या होता है कि जो 1 और 64 का विनर होगा और जो 32 और 33 का विनर होगा, उनका मैच होगा सेकेंड राउंड के अंदर। तो अब देखो सेकेंड राउंड में क्या हो रहा है, 1 और 64 एंड 32 एंड 33, इनका जो विनर आएगा, 1 और 64 का एक विनर और 32 और 33 का एक विनर, इनका क्या होगा? सेकेंड राउंड में कंपीट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 का किसके साथ होगा? 263 का किसके साथ होगा भाई? 263 का होगा 31 एंड 34 के साथ। 362 का किसके साथ होगा? 362 का होगा 30 एंड 35 के साथ। तो अब देखो आप, ये हो गया हमारा, इसके अंदर हमारा ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो भी विनर आता है, हमारे टोटल कितने बनेंगे? यहाँ पे 32 हैं, तो 32 का हाफ करो, 32 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो इसका मतलब यहाँ टोटल मैचेस कितने बनेंगे? टोटल 16 मैच खेले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 16 मैच तक खेले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो 16 मैच तक यहाँ खेले जाएंगे। अब आप आइए, अब इसके अंदर क्या होगा कि जब आपका 1 और 64 का कोई में से एक विनर है और 32 33 का एक विनर है, ठीक है, उन दोनों के बीच में मैच हुआ, तो उनमें से भी एक विनर आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 64 32 33 में से कोई एक विनर आएगा सेकेंड राउंड के अंदर। सेम
16, 17, 49, 48 में से कोई एक विनर आएगा आपका किसके अंदर, सेकेंड राउंड के अंदर। तो जो आपका इस बैच में से विनर आएगा और जो आपका इस बैच में से विनर आएगा, उन दोनों के बीच में कंपीट करवाएंगे, उन दोनों का मैच बनाएंगे और वो किस राउंड में जाएंगे, वो जाएंगे थर्ड राउंड में, राउंड 3 के अंदर जाएंगे वो। ठीक है, राउंड 3 में जाएंगे अब वो। तो राउंड 3 में क्या हुआ, 164, 32, 33, 16, 49, 17, 48 ये कंपीट करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मैच हो गया। सेकंड मैच के अंदर क्या हो जाएंगे आपका 263, 31, 34 किसके साथ कंपीट करेगा, वो करेगा 15, 50 एंड 18, 47 के साथ। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल कितने मैचेस हैं हमारे सेकंड राउंड के अंदर, टोटल 16 मैच है। ठीक है, टोटल 16 मैच है। तो इसका मतलब जब आप थर्ड राउंड में इसको भेजेंगे तो टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे, 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8। इसका मतलब टोटल मैचेस हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। ओके, तो अब यहाँ देखिए राउंड 3 के अंदर क्या हो रहा है, राउंड 3 में आपके 1 से लेके 8 तक मैच है, टोटल 8 तक मैच है। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ। ठीक है, ये 8 ग्रुप है हमारे। तो इन 8 ग्रुप के अंदर एक एक कोई विनर है। ठीक है, उनको आपस में कंपीट करा रहे हैं। तो उनका जो कंपीट होगा वो कौन से राउंड में होगा, आपका थर्ड राउंड में। इनमें से कंपीट हो रहे हैं, इन दोनों में से कंपीट होंगे, वो थर्ड राउंड में होंगे। और जो इसका कंपीट 8 वाले से करेगा, ये दोनों कहाँ कंपीट करेंगे, आपके क्वार्टर फाइनल राउंड में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके थर्ड राउंड के अंदर टोटल 8 मैचेस बन रहे हैं तो क्वार्टर फाइनल राउंड के अंदर आपके कितने मैचेस बन जाएंगे, 8 डिवाइड बाय 4, तो दैट इज 8 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 4। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 4 मैचेस बनेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन गया। तो इसके अंदर कोई एक विनर होगा, इसके अंदर से कोई एक विनर आएगा क्वार्टर फाइनल के अंदर, ऐसे इसके अंदर से भी एक विनर आएगा क्वार्टर फाइनल के अंदर, सेम। सेकंड वाले में से एक विनर आएगा क्वार्टर फाइनल के अंदर और थर्ड वाले में से एक विनर आएगा क्वार्टर फाइनल के अंदर। तो इसका और इसका विनर आपस में कंपीट करेगा सेमीफाइनल में, और फर्स्ट वाले का और फोर्थ वाले का कंपीट करेगा आपका सेमीफाइनल में। ओके, तो सेमीफाइनल में क्या होगा, हमारे पास टोटल टीम कितनी हो गई, 2 टीम हो गई, जिसके अंदर टोटल प्लेयर कितने हो गए, 4 प्लेयर हो गए। ठीक है, तो सेमीफाइनल के लिए हमारे पास टोटल कितने ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए। ठीक है, 2 ग्रुप हो गए। तो वहां से हमारा फाइनल कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, तो आप देखो हमारे इसके अंदर है 164 और 4 वाला आपका ये आपका कंप्लीट। ठीक है, दिस वन, इसका मैच आपका किसके साथ है, इसके प्लेयर के साथ है, जो आपका फाइनल है। ठीक है, फाइनल वाला किनके बीच में होगा, इस फाइनल वाला आपका इसके बीच में और इसके बीच में। यहां से कोई एक विनर होगा और यहां से कोई एक विनर होगा। इन दोनों में से जो विनर आएंगे उनके बीच जो मैच होगा वो आपका फाइनल मैच कहलाएगा, और वहां से एक फाइनल विनर निकल के आएगा जो ओवरऑल टूर्नामेंट का क्या होगा, हमारा विनर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ओके, तो अब हम समझते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह से हैं। ठीक है, सो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, if the player seeded 43 won the tournament then which of the following player cannot be the runner up। अगर 43 जो है seeded 43 मैच जीत जाता है, मतलब फाइनल में पहुंच जाता है, तो ये बताओ कि इनमें से कौन सा रनर अप नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन नहीं हो सकता, कौन नहीं जीत सकता। तो अब आप देखो 43 को अगर फाइनल में पहुंचना है, ठीक है, 43 को फाइनल में पहुंचना है, तो 43 आपका कहाँ पर है, 43 आपका 22, 43 आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें से जो भी आपके इस वाले बैच में होंगे वो रनर अप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इस बैच से तो 43 जीत चुका ना, इस बैच से 43 जीत चुका। तो इसका मतलब ये तो आपके रनर अप नहीं हो सकते हैं। इनमें से कोई भी रनर अप क्या होता है, जिसके साथ सेमीफाइनल में आप जिसके साथ फाइनल में आप कंपीट कर रहे होते हैं, जिसको हरा के आप फाइनल में गए होते हैं। ठीक है, तो इनमें से तो कोई नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या था, हमारे पास ऑप्शन में है 44, 45, 46 एंड 36। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, 44, 45, 46 एंड 36। तो चेक कर लेते हैं।
हाँ, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको इसमें ढूंढना है 40, इनमें से कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं। 44 को हम पहले चेक करते हैं, क्या 44 यहाँ पर है? तो सी 44 कहाँ पर है आपका, देखो 44 है इस वाले के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब 44 तो रनर अप हो सकता है। 45 की बात करते हैं, 45 भी यहाँ पर है, इसका मतलब 45 भी रनर अप होता है। 46 की बात करते हैं, तो 46 हमारा कहाँ है? 46 हमारा कहाँ पर है? 46 है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब 46 तो रनर अप नहीं हो सकता। अब हम आते हैं 36 पे। 36 कहाँ पर है हमारा? 36 इज हियर, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या पता चलता है, देखो जो आपके फर्स्ट ग्रुप के अंदर है, जो भी फर्स्ट ग्रुप के अंदर है, इनमें से तो कोई भी रनर अप हो सकता है। एक तो यहाँ से आना ही था ना फाइनल के अंदर, सेमीफाइनल से निकल के एक फाइनल के लिए यहाँ से तो जाएगा, ठीक है। तो या तो 36 जा सकता था, 45 भी जा सकता था, 44 भी जा सकता है। लेकिन अगर 43 जो है आपका बोला हुआ है कि 43 तो मैच जीता ही है, 43 में मैच जीत गया है, इसका मतलब 46 तो रनर नहीं हो सकता ना, तो आंसर विल बी 46। ओके, सो the answer will be 46 only. Player seeded 46 cannot be the runner up. Okay, first question clear हुआ। अब हम second question पे चलते हैं। Who could be the lowest seeded player facing the player seeded 12 in the finals? पूछ रहा है कि lowest seeded player बताओ जो कि प्लेयर जिसको 12 seeded मिला हुआ है उसके साथ फाइनल में compete करेगा। ओके ओके, तो अब आपका अगर आपका 12 जो है वो बोल रहा है 12 फाइनल में किसके साथ कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, लोएस्ट सीडेड बताना है हमें, तो हम देखते हैं 12 कहाँ पर है, ठीक है। 12 आपका कहाँ पर है, यहाँ आप देखिए 12 आपको देखना है फर्स्ट हाफ में है, सेकंड हाफ में है। तो हम देख रहे हैं कि 12 आपका जो है ट्वेल्व आपका कहाँ पर है, फर्स्ट हाफ के अंदर है। इसका मतलब जो इसके साथ कंपीट करेगा वो कौन सा हाफ में होगा, सेकंड हाफ में, लोअर हाफ में। अपर हाफ में आपका 12 है, तो जो इसके साथ कंपीट कर रहा होगा वो लोअर हाफ में होगा। अब लोअर हाफ में लीस्ट सीडेड देखना है आपको। लीस्ट सीडेड क्या है, आप देखो सबसे कम सीडेड क्या है, 63। सबसे 1 to 64 में लीस्ट सीडेड कौन सा था, 64 था। लेकिन 64 तो आपका अपर हाफ में है ना, ठीक है। तो इसलिए आपका उसके बाद 64 के बाद और कौन सा है भाई, 64 के बाद है 63। 63 कहाँ पर है आपका, सेकंड हाफ के अंदर। तो इसका मतलब जो लोएस्ट सीडेड होगा वो कौन सा होगा, 63। तो 12 के साथ लोएस्ट सीडेड कौन सा कंप्लीट करेगा आपका, 63। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, तो इसका मतलब हमारा सेकंड का क्या आंसर होगा, आपका सेकंड का आंसर हो गया 63, फर्स्ट का आंसर है आपका 46। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question is, if one of the match was between the players seeded 23 and 46, then one of the match in the tournament can be between players seeded। पूछ रहे हैं कि अगर एक मैच हम मान लेते हैं 23 और 46 के बीच हो गया, ठीक है, तो ये बताओ कि इनमें से हमें जितने ऑप्शन दिए हैं ऐसा कौन सा पेयर जिनके बीच दूसरा मैच हो सकता है। एक मैच तो आपका 23-46 के साथ सेमीफाइनल में हो गया, तो अब आप देखो कि अगर आगे हम मैच कराना चाहें तो इनमें से किसके साथ हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, आपका है 9-13, 6-18, सी हमारा ये है, ठीक है। ओके, ठीक है, 9-13, 6-18, 5-51 एंड 17-15, ठीक है। तो आपका क्या क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 9-13 के बीच में आप करा सकते हैं, ठीक है, 6-18 के बीच में करा सकते हैं, 5-51 के बीच में करा सकते हैं, 17-15 के बीच में करा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। और बोला क्या है, किसके बीच में मैच हो गया है, मैच हुआ आपका 23 एंड 46 के बीच में। देखते हैं 23 एंड 46 है कहां पर, ठीक है। ओके, 23 कहाँ है आप देखिए इसमें, तो हमारा 23 है यहाँ पर, ये रहा हमारा 23, ठीक है।
ये हमारा 23 है, ठीक है, एंड वे इज 46, हियर इज 46, ठीक है। 23 एंड 46 मतलब कि लोअर हाफ के अंदर आपका मैच करवा रहे हैं, लोअर हाफ में 23 एंड 46 के बीच में मैच हो रहा है। तो अब ये बताओ इनमें से किसके बीच मैच हो सकता है। 9 और 13 को देखते हैं, 9 कहाँ पर है हमारा, ठीक है, तो 9 आपका यहाँ है एंड 13 आपका कहाँ है, 13 भी यहाँ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही हाफ में से दो लोग निकल के आए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 9 और 13 के बीच में तो मैच, सॉरी, ऐसा हो सकता है 9 और 13 के बीच में मैच हो सकता है, इट इज पॉसिबल। सॉरी, 9 जो हमारा सेकंड पेयर आएगा वो इसमें से ही आएगा, अपर हाफ में से, ठीक है। तो 9 या 13 के बीच में मैच हो सकता है, लेकिन हम अदर ऑप्शन चेक करते हैं। 6 एंड 18, 6 कहाँ पर है आपका, आप देखो 6 आपका कहाँ पर है, हाँ या 6 इज हियर, सॉरी 6 and where is 18? 18 is here in the first half. 18 is in the here, ठीक है। 6 and 18, तो 6 and 18 तो आपका लोअर हाफ का ही पार्ट है, लेकिन लोअर हाफ में से तो हमारा क्या आ चुका है, 23 एंड 46 ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तो लोअर हाफ में से तो आप कुछ और नहीं ले सकते, इसका मतलब 6 और 18 तो नहीं हो सकता, तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक। 6 एंड 18 नॉट पॉसिबल। आते हैं 5 एंड 51 पे। 5 ये रहा आपका एंड 51 कहाँ पर है आपका, 51 इज हियर। तो एक फर्क अपर हाफ का और एक लोअर हाफ का, इन दोनों के बीच में मैच हो सकता है क्या, इन दोनों के बीच में मैच नहीं हो सकता, या तो लोअर हाफ का लोअर हाफ से ही होगा या अपर हाफ का अपर हाफ से होगा, लेकिन लोअर हाफ में तो हम ऑलरेडी पता है हमें कि 23 और 46 के बीच में मैच हो रहा है, तो इसका मतलब लोअर हाफ से तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो अपर हाफ से ही आएगा। ओके, तो इसका मतलब आपका क्या है कि 5 और 15 के बीच भी मैच, 5 और 51 के बीच भी मैच नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज 17 एंड 15, तो 17 आपका कहाँ पर है, 17 इज हियर एंड वेयर इज 15, 15 इज हियर, तो इसका मतलब 17 आपका कहाँ है, 17 इज इन द अपर हाफ एंड 15 इज इन द लोअर हाफ, तो इसका मतलब 17 और 15 के बीच के अंदर भी मैच नॉट पॉसिबल। तो द करेक्ट आंसर विल बी 9 एंड 13, इसका मतलब 9 और 13 के बीच में मैच पॉसिबल है, ठीक है, और आपका इसके बीच में मैच पॉसिबल नहीं है। फाइन, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से, आंसर विल बी 9 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर आर ओनली 5 अपसेट्स, अ लोअर सीडेड प्लेयर बीटिंग अ हायर सीडेड प्लेयर। अपसेट्स का क्या मतलब होता है कि एक लोअर सीडेड प्लेयर जो है वो हायर सीडेड प्लेयर को हरा देता है, मतलब अगर 1 और 64 आपस में मैच कर रहे हैं तो 1 जो है वो हार जाएगा और 64 जो है वो जीत जाएगा, ये मतलब हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है केवल यहाँ पर 5 ही अपसेट होते हैं इन द टूर्नामेंट, देन हु कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर विनिंग द टूर्नामेंट। तो लोएस्ट सीडेड प्लेयर कौन होगा जो कि टूर्नामेंट को जीतेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो हम आते हैं यहाँ पर, देखो हमें बोला हुआ है कि आपका 5 टूर्नामेंट जो है वो सी किसी कोई भी अगर आपका विनर है तो विनर को जीतने के लिए क्या करना होगा, जो 5 टूर्नामेंट गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल, ये जीतने होंगे तभी वो फाइनल में जा सकता है और फाइनल में जीत सकता है। अगर वो पांचों में से कोई, अगर ये पांचों को पार नहीं करता है तो इसका मतलब वो नहीं जीत सकता। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसका मतलब आपका क्या बोल रहा है कि 5 तो गेम हार चुका है, ठीक है, 5 जो है वो आपका टूर्नामेंट विन नहीं किया उसने, तो इसका मतलब 5 अपसेट है, आपके 5 अपसेट है। तो वो पूछा है कि लोएस्ट सीडेड कौन सा है जो मैच को विन कर सकता है, तो वो कौन सा होगा आपका सी, वो कौन सा हो सकता है आपका 32, ठीक है। तो 32 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस इज द लोएस्ट सीडेड दैट कैन विन द मैच। अगर 5 लोग हार गए हैं, 5 जो है वो अपसेट हो चुका है, 5 राउंड आपका अपसेट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32 विल बी द विनर। ओके, सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 32। ओके, बोला कि 5 ही अपसेट थे इस टूर्नामेंट के अंदर, और जो, तो आप बताओ कि कौन सा लोएस्ट सीडेड है जो विन कर जाएगा टूर्नामेंट को, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा आपका 32, क्योंकि 5 तो आपके अपसेट हो चुके हैं ना, केवल 5 ही अपसेट है, तो इसका मतलब 32 विल बी द विनर। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, उससे पहले आपको अपसेट का एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता चुकी हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। अपसेट
means upset means a lower seeded player defeat upper seeded player. The total number of rounds is k and kth round is the final round. ठीक है, जैसे हमारे इसके अंदर टोटल अगर आप देखो तो k इक्वल टू यहाँ पर कितना था हमारा 6 था. ठीक है, तो हमारा जो 6th राउंड था 6 इज फाइनल राउंड. ठीक है, तो आपका फाइनल राउंड क्या होगा 6 राउंड इज द फाइनल राउंड. ठीक है, और आपका फर्स्ट और 64 का अगर मैच होता है तो 64 अगर विन कर जाता है तो इसका मतलब ये जो आपका ये अपसेट माना जाएगा. दिस इज कॉल्ड अपसेट. ओके, यहां तक बात समझ आ गई आपको, ये आपका अपसेट माना जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. फाइन. द सेकंड क्वेश्चन इज okay. There are 8 members P, Q, R, S, T, U, V and W in a family. These 8 persons belong to 3 different generations such that there are 3 married couples which while 2 members are unmarried, each couple has at least a child. Okay. Further, it is known that each of these 8 persons work with a different company among A, B, C, D, E, F, G and H in any order. V and R are the only siblings in the family and U, W, R and S are of the same gender. W and V do not form a married couple. The person who works with A is the mother of person who works with F, who in turn is female. V does not work with E and his daughter is S. R works with B. The person who works with G and the one who works with E belong to the same generation. Okay. The person who works with G is female, whereas the person who is working with E is a male. The person who works with C is the maternal grandfather of Q, who in turns work with D. T works with H. Fine. This is our question. So the options are which company does W work with? Options are H, G, F, A. Next question is who among the following is the spouse of the person working with E? R, S, W. The person works with E is unmarried. Okay, next question is which of the following pair of persons from a married couple? V and U, S and T, R and T, more than one of the above. Which of the following statement are definitely true? U works with A, W is the daughter of P, Q is male, more than one of the above. Okay. So, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. ओके, सो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपके टोटल कपल कितने हैं? टोटल कपल आर 3. ठीक है, और जनरेशन कितनी है? टोटल जनरेशन भी आपकी 3 है. ठीक है, टोटल पीपल कितने हैं? इज 8. ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो सकता है? आपका ऑर्डर ये हो सकता है कि या तो ये हो सकता है कि दो जो हैं, दो कपल इन जनरेशन 2 एंड वन कपल इन जनरेशन 1. ये हो सकता है आपका पहला. या दूसरा क्या हो सकता है आपका कि वन कपल इन जनरेशन 2 एंड टू कपल इन जनरेशन 1. ओके, ये हो सकता है. लेकिन हमें इसमें क्या पता है कि जो आपके U, W, R एंड S ये क्या है? इनका जेंडर क्या है? सेम जेंडर है. ठीक है, हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये सेम जेंडर के हैं. दूसरा S जो है वो डॉटर है. S क्या है? डॉटर. इसका मतलब ये क्या हो गई? फीमेल. इसका मतलब ये लोग भी क्या हो गए? फीमेल हो गए सब. मतलब कि U, W, R एंड S ये सब क्या हो गए? आपके फीमेल हो गए, क्योंकि S डॉटर है और S क्या है? वो फीमेल हो गई. ठीक है, तो ये आपके फीमेल हो गए. अब बात ये है कि Q जो है वो थर्ड जनरेशन से है. Q आपका थर्ड जनरेशन से है, क्योंकि द पर्सन हु वर्क्स विद C इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ Q. Q का कोई मैटरनल ग्रैंडफादर है. ठीक है, इसका मतलब Q आपका कहां से हो गया? Q है आपका थर्ड जनरेशन से. ठीक है,
ये थर्ड जनरेशन से आपका। फाइन। अब क्योंकि 3 कपल है, दे आर 3 कपल, ठीक है, 3 कपल है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 मैन एंड 3 वुमेन होंगी। वुमेन तो हमने यहाँ पे पता कर ली, हमारे पास 4 हैं, ठीक है, लेकिन मैन का हमें नहीं पता। अब मैन का हमको क्या है कि क्यू जो है वो थर्ड जनरेशन में, इसका मतलब क्यू से तो कोई लेना देना नहीं है, क्यू तो इनमें से किसी का भी हस्बैंड नहीं हो सकता, क्यू इज इन थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कोई कपल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 3 ही कपल दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब बाकी आपका क्या बचता है, यू वी डब्ल्यू आर एस और क्यू हो चुका, तो इसके अलावा आपके पास क्या बच रहा है, देखो यू हो गया, वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, वी नहीं हुआ सॉरी, यू डब्ल्यू आर एस, यू डब्ल्यू आर एस एंड क्यू इज डन, ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या क्या बचता है, आपके पास बचता है पी टी एंड वी। इसका मतलब पी टी एंड वी क्या होंगे, आपके मेल होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पी टी एंड वी आर मेल। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आओ, हम देखते हैं, हमारे पास है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि आपका पी मेल है, टी मेल है, वी मेल है और ये चारों फीमेल है। यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद क्यू हमारा थर्ड जनरेशन है, क्यू हमारा थर्ड जनरेशन में है, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता करना है कि अब क्या होता है कि यहाँ पर ये, अब देखते हैं आगे, ओके, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि वी एंड आर सिबलिंग्स, ठीक है, ये सिबलिंग्स है, ठीक, ये सिबलिंग्स है। एस इज डॉटर ऑफ, एस इज डॉटर ऑफ वी, एस किसकी डॉटर है, हमारी वी की डॉटर है, ठीक है। तो एस हमारी वी की डॉटर, वी और आर क्या है, सिबलिंग, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट आपको क्या बोला, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका वी है, वी और जो डब्ल्यू है, ये तो कपल नहीं हो सकते, ठीक है, वी एंड डब्ल्यू आर नॉट कपल, सो वी कैन से, सो वी एंड डब्ल्यू आर नॉट कपल, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू एंड वी आर कपल। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखो अब इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो ओनली फीमेल रह गई, ये आपका एक कपल बन गया, यू एंड वी आर कपल, ठीक है। अब जो आपका क्या हो गया कि डब्ल्यू, अब आपकी जो ओनली फीमेल है इस जनरेशन में वो कौन है, आपकी डब्ल्यू है ना, ओके। एंड पर्सन वर्किंग विथ सी, ओके, ओके। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चलता है, देखो अब क्या हुआ कि आपका जो क्यू है, ठीक है, क्यू हमारा क्या हो गया, इसका मतलब क्यू हमारा, क्यू इज फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, सॉरी क्यू इज नॉट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, सॉरी सॉरी, क्यों नहीं आपका फर्स्ट जनरेशन से। अब आपका क्या होता है कि जो ओनली फीमेल लेफ्ट है वो कौन है, डब्ल्यू है हमारी, डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू हमारी किसकी हो गई, डब्ल्यू इज फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, डब्ल्यू इज फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। आगे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो इंसान सी के साथ काम करता है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है क्यू का, मैटरनल ग्रैंडफादर है क्यू का, जो इंसान सी के साथ काम करता है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है क्यू का। इसका मतलब जो पी है वो किसके साथ काम कर रहा है, सी के साथ, पी इज वर्किंग विथ सी, पी इज वर्किंग विथ सी एंड पी क्या हो गया, ये भी फर्स्ट जनरेशन से हो गया। तो अब देखो यहाँ से हमने ये चीज कंक्लूड किया, अब हम देखते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका हमें इसकी तरफ दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि ये आपका मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, यू वी आपका मेल है और डब्ल्यू आपका फीमेल है एंड क्यू जो है वो थर्ड जनरेशन से है। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई है, ठीक है। इसके आगे की अब क्या बात है हम देखते हैं, इसके आगे सी, जो पर्सन है क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, इसको सबको हम करते हैं इरेज, ठीक है। यहां पर आते हैं, ओके। द पर्सन हु वर्क्स विद ए, क्वेश्चन में बोला है आपको कि द पर्सन हु वर्क्स विद ए इज, जो ए के साथ काम करता है ये क्या है, इज द मदर ऑफ पर्सन हु वर्क्स विद एफ, ठीक है।
जो इंसान F के साथ काम कर रहा है और जो A के साथ काम कर रहा है, A के साथ जो काम कर रहा है वो F की कौन है? मदर है। ठीक है, यहां तक बात समझ गई। इसका मतलब ये जो है, जो A के साथ काम कर रही है वो फीमेल है। यहां तक बात समझ आई। दिस मेक पर्सन वर्किंग विद F इज सेकंड जनरेशन। इसका मतलब जो F है वो सेकंड जनरेशन से हो जाएगा हमारा, क्योंकि थर्ड जनरेशन में तो हमारा W है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी A जो है ये हमारी फर्स्ट जनरेशन से हो जाएगी, एंड पर्सन वर्किंग विद A ये हमारा कहां से हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन से हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। सिंस आर इज वर्किंग विद बी, आर किसके साथ काम कर रहा है? बी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, दिस मीन्स यू इज वर्किंग विद ए। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि यू जो है आपका किसके साथ काम कर रहा है? यू आपका काम कर रहा है ए के साथ। ठीक है, यू इज वर्किंग विद ए एंड हेंस एस इज वर्किंग विद एफ। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो आर हमारा बी के साथ काम कर रहा है, यू हमारा ए के साथ काम कर रहा है, एस हमारा एफ के साथ कर रहा है। दैट लीव्स वी। इसका मतलब वी अब हमारा कौन बच गया? वी हमारा हो गया ग्रैंडफादर। यहां से बात समझ आई। वी हमारा होगा ग्रैंडफादर एंड इट इज वर्किंग विद हुम? सी। ये आपका किसके साथ काम कर रहा है? सी। सिंस द पर्सन वर्किंग विद ई एंड जी बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन। ठीक है, सेम जनरेशन, दे मस्ट बी इन द सेकेंड जनरेशन। ऐसा हो सकता है कि सेकेंड जनरेशन में हो। लिविंग टी इज द, तो ये मे बी इन द सेकेंड जनरेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया? टी जो है आपका, टी आपका हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में हो। ठीक है, और आर के साथ कपल कर रहा हो। आर के साथ क्या कर रहा हो? सॉरी, आर के साथ आपका कपल कर रहा हो। टी आपका आर के साथ कपल कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। फॉर द पर्सन, अब क्या होता है कि देखो, द पर्सन वर्किंग विद जी, वो क्या है? आपकी फीमेल है। ठीक है, मीन्स डब्ल्यू वर्क्स विद जी, डब्ल्यू जो है वर्क्स विद जी एंड पी वर्क्स विद ई। यहां तक बात समझ आ गई कि जो जी है वो आपकी फीमेल है। ठीक है, ई एंड जी आपके सेम जनरेशन से है। जी जो है वो आपका डब्ल्यू जो है वो आपका जी के साथ काम कर रहा है, और पी जो है वो आपका ई के साथ काम कर रहा है। तो अब यहां देखो, आपका यहां से क्या पता चला हमारा? सी, ए जो है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन से, जो ए के साथ काम कर रहा है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन से। तो जो आपका ए के साथ काम कर रहा है वो आपका फर्स्ट जनरेशन से, और ए के साथ कौन काम कर रहा है? यू। तो यू ए के साथ काम कर रहा है फर्स्ट जनरेशन से और फीमेल है। यहां तक बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं आपका एफ। एफ जो है वो आपका सेकंड जनरेशन से है। एफ आपका सेकंड जनरेशन से, ऐसा हमने माना है कि क्योंकि इसकी मदर है। ठीक है, तो एफ के साथ कौन काम कर रहा है? आपका एफ। ठीक है, एफ के साथ कौन काम कर रहा है? आपका एस। एस आपका एफ के साथ काम कर रहा है और ये सेकंड जनरेशन से, और ये भी फीमेल है। यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वी है, वी वो सी के साथ काम कर रहा है, वो ग्रैंडफादर। इसका मतलब ये आपका कहां से है? ये आपका फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है, तो इसका मतलब आपका वी जो है, वी काम कर रहा है सी के साथ और ये फर्स्ट जनरेशन से है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन से है। ठीक है, आर फर्स्ट जनरेशन से हमने बता दिया हमारा। ठीक है, ओके। आर जो है वो आपका किसके साथ काम कर रहा है? बी के साथ। आर इज वर्किंग विद बी। ठीक है, ई और जी आपकी सेम जनरेशन से है। ई, जो ई है आपका, ई और जी ये सेम जनरेशन से, जो भी ई जी के साथ काम कर रहा है वो सेम जनरेशन से होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका सेकंड जनरेशन से है, तो हमने सेकंड जनरेशन लिख दिया। उसके बाद आर और टी जो है वो आपका फर्स्ट जनरेशन से है। आर और टी जो है वो आपका फर्स्ट जनरेशन से है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका जी, आपकी फीमेल है। ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो जी के साथ काम कर रहा है। जी के साथ जो काम कर रही है वो फीमेल है, और वो कौन है? डब्ल्यू। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका पी जो है वो ई के साथ काम कर रहा है। पी किसके साथ काम कर रहा है? ई के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये सब क्लियर हो गया कि आपका पी जो है वो ई के साथ काम कर रहा है, मेल है, सेकंड जनरेशन है। क्यू आपका डी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि डी बचा ना, और तो कुछ बचा नहीं, बाकी सब तो फिल हो गए। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट है, तो आपके जो कपल बनते हैं, हम कपल लिख लेते हैं। यहाँ पर कपल कौन बन रहे हैं? कपल बनते हैं आपके, कौन कौन बन गए? यू एंड वी, आर एंड टी, पी और एस, ये आपके कपल हो गए।
ठीक है, इसमें V आपका क्या है, V इज मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है। और इसकी डॉटर जो है इसकी डॉटर V की डॉटर S जो है, V की डॉटर S इज मैरिड, S मैरिड है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। हमारा क्वेश्चन है विच कंपनी डज W वर्क्स विद, W किसके साथ काम कर रहा है, तो आप देखो W किसके साथ काम कर रहा है, W इज वर्किंग विद G, ठीक है। तो W आपका किसके साथ काम कर रहा है, G के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी G, करेक्ट ऑप्शन विल बी G। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द स्पाउस ऑफ द पर्सन वर्किंग विद E, जो पर्सन ई के साथ काम कर रहा है उसका स्पाउस कौन होगा। तो हम देखते हैं ई के साथ काम कौन कर रहा है, ई के साथ काम कर रहा है आपका पी, ठीक है। ई के साथ पी काम कर रहा है, पी का कपल कौन है, हमने अभी पढ़ा था पी का कपल कौन है हमारा एस। तो इसका मतलब यहाँ पर पी का कपल कौन हो गया हमारा एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एस विल बी द कपल ऑफ पी, ठीक है। ओके, इसको बार बार मूव नहीं करते, एक सेकंड। सॉरी, ओके ऐसे ही देखते हैं, सॉरी इट इज नॉट वर्किंग। Which of the following pair of the person form a married couple, इनमें से कौन सा मैरिड कपल बन रहा है, VUST RT, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा बन रहा था, हमें पता है हमारा कौन कौन बन रहा था, VU बन रहा था, RT बन रहा था, PS बन रहा था, VU RT एंड PS, ठीक है। तो VU बन रहा है आपका, RT बन रहा है। क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज which of the following statement is are definitely true, इनमें से कौन सी definitely true है, U works with A, U works with A, U तो वर्क कर रहा है A के साथ, ठीक है। ये आपकी करेक्ट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज W is the daughter of P, W is the daughter of P, एक सेकंड। W is the daughter of P, ठीक है। तो W जो है P की डॉटर हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकता W का हमें नहीं पता, W डॉटर है या नहीं है ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसके अंदर कोई बात नहीं करी। Q इज अ मेल, Q मेल है क्या यहाँ पर, Q का भी हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट दिस मोर देन वन ऑफ अबव। तो हमें क्या पता है इसके अंदर कि ये तो आपका डेफिनेटली ट्रू है कि U वर्क्स विद A, U तो A के साथ काम कर रहा है, बाकी का वी डोंट नो। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी विल मूव to a next question, that is question number third. Question number third is on a particular day, six person Kalyan, Kumar, Kiran, Karan, Krishna and Kirtan boarded a city bus at a bus stop. Each person wanted to get off the bus at a different stop among Brigade Road, Splendid, Secretariat, Egamore, Saket and Dadar, not necessarily in the same order. The bus travels to each of these stops in a specific order. Further, it is also known that क्या क्या बताया हमें इसमें, Krishna got off the bus at the stop immediately after that at which Kumar got off the bus. Next is Kumar, who did not get off the bus at Secretariat, was not the first person among the six to get off the bus. Next, for the entire duration that Kiran was in the bus, there were at least two people among the six along with him. Karan, who was not the last person among the six to get off the bus, got off the bus at the stop immediately after Saket. Brigade Road is the stop immediately after the stop at which Kalyan got off the bus. Kiran, who was not the first among the six person to get off the bus, got off the bus at Igamore, while Krishna got off the bus at the stop immediately before Dadar. Okay, so our questions are who got off the bus at Dadar? तो ऑप्शन हमारे क्या है, कल्याण, करण, कीर्तन एंड कुमार, ठीक है। Who was the first person among the six to get off the bus?
that is Kalyan, Kirtan, Kumar cannot be determined. Next question is, how many of the 6 person got off the bus before the bus stopped at Secretariat? 0, 1, 3, 4. Next, which of the following pair of person got off the bus at consecutive bus stop? Kalyan Kiran, Kiran Krishna, Karan Krishna, Karan Kiran. Okay. So let's start the solution. इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोले कि हमारे पास 6 लोग हैं. कौन से 6 लोग हैं हमारे पास? कल्याण, कुमार, किरण, करण, कृष्णा एंड कीर्तन. ठीक है, ये हमारे पास 6 लोग हैं. ये एक सिटी बस जाती है बस स्टॉप से, उसमें बोर्ड करते हैं. ठीक है, अब क्या करता है, हर पर्सन जो है वो अलग अलग स्टॉप पे उतरता है. ठीक, तो आपको स्टॉप्स के नाम दिए हुए 6 स्टॉप हैं आपके. ब्रिगेडियर रोड, स्प्लेंडेड, सेक्रेटरीट, एगामोर, साकेत एंड दादर. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ब्रिगेड, ये नेसेसरली नहीं है कि ऑर्डर यही हो, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है. तो हमें बताना है कि किस ऑर्डर में क्या होगा. द बस ट्रेवल टू ईच ऑफ दीज स्टॉप इन स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है, तो आपको बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उससे आपको बनाना है. Krishna got off the bus at the stop immediately after that at which Kumar got off the bus. कहते हैं कृष्णा जो है उस बस स्टॉप पे उतरता है, बिल्कुल कुमार जिस भी बस स्टॉप पे उतरता है बिल्कुल उसके बाद वाले बस स्टॉप पे कृष्णा उतरता है. मतलब कि पहले कुमार उतरेगा, ठीक है, और उसके बाद कृष्णा उतरेगा. यहां तक तो हमें बात समझ आ गई. ठीक है, उसका कुमार who did not get off the bus at secretariat. तो इसका मतलब जो कुमार है वो सेक्रेटरीट पे तो नहीं उतरा है. ठीक है, सेक्रेटरीट पर नहीं उतरा, इसके अलावा कहीं भी उतर सकता है. ठीक, was the first person among the 6 to get off the bus. कुमार जो है वो पहला पर्सन है, तो ये सबसे पहला पर्सन है जो उतरा है. ठीक है, for the entire duration that किरण was in the bus. किरण जो है वो पूरी ड्यूरेशन के लिए बस में था. ठीक है, तो किरण लास्ट तक बस में रहेगा, मतलब कि किरण जो है वो 6th पर्सन होगा हमारा. यहां तक बात समझ आ गई. ठीक है, देयर वॉज एटलीस्ट 2 पीपल अमंग द 6 अलॉन्ग विद हिम. ठीक है, उसके साथ कम से कम 2 लोग थे. 6 में से कम 2 लोग थे. ठीक, एंटायर ड्यूरेशन. करण हु वॉज नॉट द लास्ट पर्सन अमंग द 6 टू गेट ऑफ. करण इसका मतलब लास्ट में नहीं है. करण लास्ट में नहीं है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, तो करण थर्ड. करण जो है वो आपका वो थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है. ठीक है, करण गॉट ऑफ द बस एट द स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर साकेत. तो करण जहां भी उतरता है उससे पहले वाला स्टॉप क्या होगा, साकेत है. ठीक है, ब्रिगेड रोड इज द स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर द स्टॉप एट विच कल्याण गॉट ऑफ. अब कल्याण जहां भी उतरता है, ठीक है, हम बात करते हैं कल्याण की, तो कल्याण जहां भी उतरेगा उसके जस्ट बाद का स्टॉप क्या है, ब्रिगेड स्टॉप है. ठीक, नेक्स्ट है आपका किरण हु वाज नॉट द फर्स्ट अमंग द 6 टू गेट ऑफ द बस. किरण पहला नहीं है जो उतरा है. ठीक, गॉट ऑफ द बस एट एगामोर. तो किरण कहां पर है, एगामोरे पे उतरा है. ठीक है, वाइल कृष्णा गॉट ऑफ द बस एट द स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर द दादर. ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द दादर. तो कृष्णा के बाद जो भी उतरा होगा, कृष्णा का तो नहीं पता कहाँ उतरा है, लेकिन कृष्णा के बाद जो भी उतरा होगा वो कहाँ होगा भाई, वो दादर पे होगा. यहां तक बात समझ आ गई. कृष्णा के बाद जो भी आएगा वो दादर पे होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसका चार्ट बनाने. देखिए, हमने ले लिया, हमारे पास 6 लोग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6. हमारे पास हमें ये पता है कि कुमार के बाद कृष्णा आएगा. ठीक है, कुमार के बाद कृष्णा आएगा. ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि जो कुमार है वो सेक्रेटरीट पे नहीं उतरा, लेकिन कृष्णा जहां भी उतरा है दादर, उसके बाद जो भी उतरा है वो दादर पे उतरा है. तो हमने कृष्णा यहाँ है तो हमारा ये कहां पर हो गया, दादर पे. ठीक है, बोल रहे जो किरण है उसके साथ एटलीस्ट 2 लोग थे. ठीक है, तो किरण जो है, किरण जहां भी पूरे इंटायर जर्नी में जहां भी था उसके साथ एटलीस्ट 2 लोग थे. मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो सकते क्योंकि किरण पहले नहीं उतरा. तो किरण के साथ 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं. अब बात करते हैं कि जो कल्याण है वो कहाँ उतरा है. एक सेकेंड. ठीक है,
ब्रिगेडियर रोड इज द स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर द स्टॉप ऑफ कल्याण गॉट ऑफ। जहां भी कल्याण उतरता है उसके जस्ट बाद का स्टॉप क्या है? ब्रिगेडियर स्टॉप है, तो उसके जस्ट बाद का हमने स्टॉप क्या ले लिया? ब्रिगेडियर स्टॉप ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि आपका जो करण है, ठीक है, करण से पहले जो है एक हाँ, करण जिस भी स्टॉप पे उतरा है उससे पहले क्या है? साकेत। इसका मतलब कल्याण साकेत पे उतरा और करण कहाँ उतरा है? ब्रिगेडियर स्टॉप पे। ठीक है, किरण हमारा इगामोर पे उतरा है। उसके बाद आपका बोला है कि कुमार तो आपका सेक्रेटरीट पे नहीं उतरा। ठीक है ना, कुमार आपका सेक्रेटरीट पे नहीं उतरा है, लेकिन कृष्णा जहां भी उतरा है उसके बाद दादर है। कृष्णा इसका मतलब यहाँ पर दादर है, तो यहाँ पे कोई नहीं बचा तो कीर्तन है सर। कीर्तन दादर पे उतरा है। अब कुमार सेक्रेटरीट पे नहीं है तो इसका मतलब कृष्णा सेक्रेटरीट पे होगा। और क्या बचा उसके बाद? स्प्लेंडेड, तो इसका मतलब कुमार आपका स्प्लेंडेड पे होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, टेबल समझ आई? तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। हु गॉट ऑफ द बस एट दादर? दादर पे कौन उतरा है? तो दादर पे आपका कौन उतरा है? कीर्तन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तन। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द 6 टू गेट ऑफ द बस? ठीक है, इनमें से 6 में से कौन पहला पर्सन है जिसने बस से गेट ऑफ, जो बस से उतरा था? तो सबसे पहला कौन है आपका? कल्याण। फर्स्ट नंबर पे कल्याण उतरा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? कल्याण। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द 6 पर्सन गॉट ऑफ द बस बिफोर द बस स्टॉप्ड एट सेक्रेट? सेक्रेटरीट से पे रुकने से पहले कितने लोग गॉट ऑफ कर चुके, उतर चुके थे? ठीक है, तो कितने लोग उतर चुके हैं सेक्रेटरीट आने से पहले? देखो सेक्रेटरीट यहाँ है तो कितने लोग उतर चुके हैं? 1 2 3 4, 4 लोग उतर चुके हैं, तो आंसर विल बी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन गॉट ऑफ द बस एट कॉन्जिक्यूटिव बस स्टॉप? इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कॉन्जिक्यूटिव बस स्टॉप पे उतरे हैं लोग? तो आपका है कल्याण किरण है, किरण कृष्णा है। देखो भाई, कल्याण और किरण तो नहीं है, किरण कृष्णा भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है करण कृष्णा या करण किरण। करण कृष्णा या करण किरण, तो करण किरण आपके जो हैं वो सेम कॉन्जिक्यूटिव पे उतरे हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? करण किरण। ओके, तो करण किरण विल बी द करेक्ट आंसर। So this is all about the questions. We have discussed 3 questions. Thank you.